Good morning, dear children. Welcome to back to the class. And today we are going to talk about decentralization in India. So first we will understand what is the meaning of decentralization. All of you know that what is the meaning of center. Center means you know, and decenter means something moving away from center, right? It is called decentralization. So if we talk about in the terms of Indian politics or Indian federalism, then the decentralization is when the power is taken away from central and state government and it is given to the local government is called decentralization. So all of you know that there is a third level of government in our country that is called as local government. In this local government, we have Gram Panchayat, block level, right? So this is local government. So in local government, the power is given by the central and state government. This simple process is called decentralization. Now the question is, what is the need of giving power to the local government? Why can't this state government and central government can manage the administration? Why these two levels giving power to the third level? The answer is, look at the vastness of our country. That means कितनी बड़ी हमारी कंट्री है, कितना बड़ा पॉपुलेशन है, कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, राइट? और अलग अलग एरिया का अलग अलग प्रॉब्लम है. Some people are facing different problem. For example, some people are facing problem of roadways, some people are facing problem of drainage, some people are facing problem of cleanness of the city, or some people are facing of the problem of you can say disease, some contagious disease, right or not? तो इतने बड़ी कंट्री को, इतना बड़ा एरिया, इतना बड़ा पॉपुलेशन, इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी, इन सभी को एक साथ देखना, इट इज नॉट possible for central and state government, right or not? What is the need of managing these problems by central and state government if the local people can solve it? अगर local people इसको solve कर सकते हैं तो क्या जरूरत है central और state government को इस मैटर में देखने की, right? तो हमारा जो लोकल एरिया है, राइट, उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वहां पर पानी नहीं है, बिजली नहीं है, या फिर वहां पर किसी तरह का क्लीननेस करना हो वहां पर, राइट, ये सारे प्रॉब्लम्स कैन बी सीन बाय द लोकल पीपल. यस और नो? सो to solve all these problems at a local level, we form a new government, that is local government, right? Or we can also call it as a panchayati raj system, right? Panchayati government, right? So last reason is, all of you know that democracy talks about the involvement of people in decision making, right? So if we are forming a local government where people can directly take decisions, can we say it is in favor of democracy? Yes, it is in the favor of democracy. That's why we created a third level of government called as local government, and this process is called decentralization, right? So next, coming to the history of local government, we will understand that how this local government came in our country. Look at here. Do you know that after independence, for the first time, Jawaharlal Nehru thought about this local government in 1956. 1956 or 57, right? During these years, Jawaharlal Nehru thought about this local government, and उन्होंने सबसे पहली बार in the Rajasthan नागौर डिस्ट्रिक्ट नाम की एक जगह डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में, जहां पर कि उन्होंने पहली बार लोकल गवर्नमेंट को सेटअप किया था, राइट? एंड फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स देयर आर मेनी स्टेट्स इन आवर कंट्री हु इम्प्लीमेंटेड दिस सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट, राइट? बट फ्रॉम 1950s टू 1992 इतने दिनों तक लोकल गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं था. Why it was not effective? Because all the state government created this local government but didn't give the power to them, right? उनको power नहीं दिया गया था,
ना ही पैसे दिए गए थे काम करने के लिए, ना ही टाइम पे इलेक्शन होता था, राइट और नॉट? सो वी कैन से ड्यूरिंग दीज ईयर्स द लोकल गवर्नमेंट वाज नॉट मच इफेक्टिव, राइट? सो during the time of 1992, government thought that we should implement this local government effectively because it is needed for the grassroots level, right? The people people need it, right? So with the help of 973rd and 74th amendment, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो 73वां और 74वां जो अमेंडमेंट था, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट जो था, इट वाज मेजरली टॉकिंग अबाउट द रिफॉर्म्स इन लोकल गवर्नमेंट। तो रिफॉर्म्स क्या क्या हुए, क्या क्या ठीक किया गया? ऑब्वियस सी बात है, जो लोकल गवर्नमेंट में पहले से प्रॉब्लम था उसी को ठीक किया गया होगा, ये सुनो। तो क्या क्या ठीक किया गया होगा देखेंगे। सो 1992 में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया और लोकल गवर्नमेंट को कुछ पावर दिए गए और उनको ठीक किया गया। क्या ठीक किया गया? सबसे पहला तो ये मैंडेटरी कर दिया गया दैट रेगुलर इंटरवल पे इलेक्शन होना चाहिए। इलेक्शन मस्ट बी देयर इन 5 ईयर, राइट? 5 साल में इलेक्शन होना ही नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 5 साल हो गए, 1 साल और वेट कर लो, 1 साल तक पोस्ट खाली है, ठीक है, फिर 6ठे साल हम इलेक्शन करेंगे, ठीक है। ये सब कुछ खत्म कर दिया गया एंड इट वाज मैंडेटरी to hold regular election. Second, to holding this regular election, the government formed independent state election commission in each state. हर एक स्टेट में क्या किया गया? इलेक्शन कमीशन फॉर्म किया गया, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हर एक 5 साल में इलेक्शन कंडक्ट कराए और ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो, राइट? नेक्स्ट, in this local government, some seats were reserved for some people. For example, those people who belong from scheduled caste, scheduled tribe, other backward class, right? तो कुछ सीट्स को रिजर्व कर दिया गया ताकि जो लोग इन सारे कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनका भी बेटरमेंट हो पाए। इसके अलावा some seats were reserved for women also, that is 1/3 of all the positions are reserved for women, right? Then the government, the state government required to share some powers and revenue with local government. It was made mandatory that state government should give certain power and certain money to the local government, right? So the sharing of powers and revenue, it is very state to state, अलग अलग स्टेट में अलग अलग होता है। So these are the reforms taken by the government, right? So if question comes, what are the reforms were taken in local government, ठीक है, या फिर explain the reforms taken in 73rd amendment act, you will write all these points, okay? So now we will talk about the structure of local government, ठीक है। हम स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। लोकल गवर्नमेंट बेसिकली 2 तरह के होते हैं, एक होता है जो कि रूरल एरियाज में होते हैं, एक होता है जो कि अर्बन एरियाज में होते हैं। सो इन द रूरल एरियाज it is divided in 3 part. Look at here, the first is at the level of village, ठीक है, that is gram panchayat, another level is panchayat samiti, and the third level is the district level, that is जिला परिषद। 3 लेवल हो गए, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एंड जिला परिषद। देन अर्बन लोकल गवर्नमेंट is also divided in 3 but on the basis of population of the city. अगर कोई बड़ी सिटी है जहां पर काफी ज्यादा पॉपुलेशन है तो हम उसको बोलते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। अगर उससे थोड़ी छोटी सिटी है तो उसको म्युनिसिपल काउंसिल बोलते हैं वहां की लोकल गवर्नमेंट को। और जो छोटे छोटे सेमी अर्बन एरियाज होते हैं, जो टाउन्स होते हैं, वहां पर इसको नगर पंचायत बोला जाता है। तो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द रूरल गवर्नमेंट, rural local government, that is panchayati raj system, right? So look at here, the first thing you should know that what is gram sabha. Gram sabha basically it is a meeting or it is an assembly of all the people who are living in the village, right? किसी भी विलेज में
वो सभी लोग जिसका उम्र 18 साल से ज्यादा है, ठीक है, वो इस असेंबली के मेंबर्स होते हैं। ग्राम सभा इज एन असेंबली, you can say it is an assembly, right? And in this assembly, all the people who are living in that village who have the voting rights, that means all the people who are above 18 years, right, they are member of this gram sabha, right? Okay, so this gram sabha is a permanent body, it is a permanent body. जो भी लोग हैं जिसके पास भी वोटिंग राइट है वो सभी मेंबर्स हैं, इनका इलेक्शन नहीं होता है, ये सब लोग मेंबर्स हैं, राइट? ओके, नेक्स्ट कमिंग टू द ग्राम पंचायत। अब व्हाट इज ग्राम पंचायत? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, ये तीनों इलेक्टेड बॉडी है। इलेक्टेड बॉडी मतलब लोग इनको चुनते हैं, ग्राम पंचायत को भी, पंचायत समिति को भी एंड जिला परिषद को भी, राइट? सो ग्राम पंचायत में भी कुछ मेंबर्स होते हैं जिनको लोग चुनते हैं, ठीक है। टेक एन एग्जांपल, सम पीपल, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको एक एग्जांपल। दिस इज अ डिस्ट्रिक्ट कोप्पल, राइट, एंड ऑल दिस डिस्ट्रिक्ट आर डिवाइडेड इन 4 पार्ट, दैट मीन्स ये ब्लॉक लेवल है, ब्लॉक, ठीक है। 3 लेवल मैंने बताया, एक विलेज, सेकेंड ब्लॉक and the third one is district level, right? So look at here, take an example, this is Koppal block, in this there are many villages, कई सारे villages हैं यहाँ पर, ठीक है। okay, so some people are elected at village level, some people are elected at block level, that is Koppal, Gangavati, this is block level, Kustagi block level, and some people are elected on the level of district, पूरे district level पे कुछ लोगों को elect किया जाएगा। तो 3 लेवल हो गए, विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। सो ऑब्वियस सी बात है, द नंबर ऑफ, अभी यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, द नंबर ऑफ ग्राम पंचायत इन गंगावती इज 39, ठीक है। तो कितने ग्राम सभा होंगे? टोटल 39। उसी तरह कोप्पल में 36 ग्राम पंचायत है, तो ग्राम सभा कितने होंगे? 36। कुष्टगी में 29 ग्राम पंचायत है, तो ग्राम सभा कितने होंगे? 29। सो दिस इज हाउ there are total 137 gram panchayats, okay? Next, तालुका पंचायत और ब्लॉक लेवल वी कैन से। तो ब्लॉक लेवल में गंगावती में कितने मेंबर्स हैं? 32, कोप्पल में 26, कुष्टगी में 23, यलबुर्गा में 23। तो लुक एट हियर, दीज आर द मेंबर्स हु आर इलेक्टेड एट ब्लॉक लेवल, इन लोगों को ब्लॉक लेवल पे इलेक्ट किया गया है। देन नेक्स्ट वन इज द मेंबर एट अ डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो देखो गंगावती से 8 मेंबर हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चुने गए, कोप्पल से 7 मेंबर्स हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चुने गए, कुष्टगी से 6 मेंबर्स हैं, दोज हु आर इलेक्टेड एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, राइट? सो दीज आर द नंबर्स। सो 3 लेवल पे लोगों को चुना जाता है, राइट? सो अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो इस तरह का होगा, देखो, सम ऑफ द ग्राम पंचायत्स टुगेदर फॉर्म एज अ ब्लॉक, ठीक है, एंड सम ऑफ द ब्लॉक्स टुगेदर फॉर्म एज अ जिला परिषद, राइट? सो दीज आर द 3 लेवल्स। So just you need to remember that there are 3 levels and all these 3 levels, ठीक है, इन तीनों लेवल पे लोगों को इलेक्ट किया जाता है डायरेक्टली बाय द इलेक्शन। ओके, नाउ तो सबसे पहले विलेज लेवल के बारे में बात करेंगे। एट द विलेज लेवल, एवरी विलेज हैज ग्राम पंचायत, ठीक है। एक विलेज हो या ग्रुप ऑफ विलेज हो, ये सभी लोग मिलकर ग्राम पंचायत बनाते हैं, राइट? और इस ग्राम पंचायत में कुछ मेंबर्स को चुने जाते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पंच या वार्ड मेंबर्स बोलते हैं, ठीक है। सो अभी जस्ट मैंने बताया एक विलेज है, कई सारे लोग हैं, दीज आर द मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा। दीज होल मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा विल इलेक्ट सम पीपल, फॉर एग्जाम्पल 5, 6, 10 पीपल। दिस 10 पीपल आर कॉल्ड एज पंच और वार्ड मेंबर्स। ये लोगों को चुना जाता है, लोग चुनते हैं डायरेक्टली इलेक्शन से। This gram panchayat, the 10 member is the decision making body for entire village, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं? डिसीजन लेते हैं, ठीक है। एंड दिस ग्राम पंचायत वर्क्स अंडर द सुपरविजन ऑफ ग्राम सभा, ये लोग इसको सुपरवाइज करते हैं, दीज आर द पीपल, ठीक है। अगर ग्राम पंचायत कोई भी डिसीजन लेता है तो उसके पहले एक मीटिंग होती है जहां पर कि ये सभी लोग बैठे होते हैं, सभी मेंबर्स बैठे होते हैं, एंड इन फ्रंट ऑफ मेंबर्स द डिसीजंस आर टेकन, राइट? Usually it is a provision that this Gram Sabha should meet at least twice or thrice in a year. एक साल में 2 या 3 बार ये लोग मिलना होता है, for passing annual budget also,
मतलब कि कहाँ पर क्या खर्च करना है, विलेज में ड्रेन बनाना है, विलेज में इलेक्ट्रिसिटी लगाना है, या वो विलेज को क्लीन करना है, तो इसके लिए जो खर्च होगा, जो बजट होगा, दैट विल बी पास्ड इन दिस मीटिंग, राइट। नॉट ओनली दिस, दे ऑल्सो रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ पंचायत, ठीक है, कि किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, सब कुछ डेवलपमेंट ठीक तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। दीज आर द प्रोविजन। सेकेंड लेवल इज ब्लॉक लेवल। सो ब्लॉक लेवल पे कुछ ग्राम पंचायत मिलके एक ब्लॉक बनाते हैं। लुक एट हियर, सम ग्राम पंचायत, यहाँ पर देखो ग्राम पंचायत नंबर 1, ग्राम पंचायत नंबर 2, 3, ऑल दिस 3 मिल के एक ब्लॉक बनाया है, ब्लॉक नंबर 1। उसी तरह ग्राम पंचायत नंबर 4, 5 मिलके एक ब्लॉक बनाया है, ब्लॉक 2। सो लुक एट हियर, सो few ग्राम पंचायत ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म व्हाट इज यूजुअली कॉल्ड एज पंचायत समिति, ब्लॉक और मंडल। ये तीनों में से कोई भी एक नाम आप दे सकते हो। देन these people are also elected, the members of these panchayats are also elected by the people, but the chairperson, take an example कि 5 members हैं जिसको कि ब्लॉक लेवल पे चुना गया है, ठीक है, तो ये सभी लोगों को कौन चुनेगा? द पीपल, ठीक है, पीपल ऑफ दैट ब्लॉक। नाउ इन दैट ब्लॉक जब पीपल ये सारे मेंबर्स को चुन लेंगे, तो इसमें से कोई एक को लीडर बनना है, कोई एक को चेयरपर्सन बनना है। तो चेयरपर्सन बनाने के लिए इसी 4-5 लोगों में वोट होगा, यही लोग वोट करेंगे इनडायरेक्टली, एंड दे विल बी कंसीडर एज अ, जिसको चुना जाएगा। टेक एन एग्जांपल दिस वन, ए गॉट इलेक्टेड एज अ चेयरपर्सन, ठीक है, तो ये इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है, दैट मींस मेंबर इटसेल्फ डिसाइड हु विल बी द चेयरपर्सन ऑफ द कमिटी। तो इसको प्रमुख बोला जाता है, दिस पर्सन इज कॉल्ड एज प्रमुख। इन 5 में से किसी एक को हेड बना दिया, दैट इज प्रमुख। देन जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है ब्लॉक का, उसको बोलते हैं बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। दिस इज द ऑफिसर हु गॉट क्लियर द एग्जामिनेशन। इसको चुना नहीं जाता है, ये क्या करके आते हैं, ये लोग एग्जाम दे के आते हैं। तो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर प्लस प्रमुख प्लस मेंबर्स ऑफ ब्लॉक, ये सभी लोग मिलकर रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ब्लॉक, ठीक है। नेक्स्ट इज आवर जिला लेवल, दैट मीन्स डिस्ट्रिक्ट लेवल। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन होते हैं? उसी तरह जिस तरह से ब्लॉक लेवल पे कई सारे मेंबर्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी कई सारे मेंबर्स होते हैं, जिला परिषद। उनमें से एक को चुना जाता है, ठीक है, चेयरपर्सन के तौर पे। जहां पर जैसे यहाँ पर प्रमुख चुना गया, वहां पर भी एक चेयरपर्सन को बनाया जाता है। दैट पर्सन इज ऑल्सो बिकम द हेड ऑफ द, इफ इट इज इन अर्बन एरिया, अगर ये अर्बन एरिया है तो उसको मेयर बोला जाता है ना। अगर रूरल एरियाज है तो उसको जिला परिषद का हेड बोला जाता है, राइट और नॉट। तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो काम करते हैं, दे विल टेक केयर ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ होल डिस्ट्रिक्ट, राइट। नेक्स्ट अर्बन लोकल गवर्नमेंट। अर्बन लोकल गवर्नमेंट मैंने जस्ट अभी बताया कि 2 भागों में हमने डिवाइड किया, एक रूरल एरियाज एंड अनदर वन इज अर्बन एरियाज, है ना, रूरल अर्बन। सो लुक एट हियर, इन अर्बन एरियाज दैट मीन्स इन सिटीज, राइट। ऑलरेडी मैंने बताया कि जो बड़ी बड़ी सिटीज होती है वहां पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बोलते हैं, राइट, ठीक है। एंड ऑल दिस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल्स, दे आर इलेक्टेड बॉडीज, राइट, बाय द पीपल, पीपल ऑफ द सिटी। सिटी के जो लोग हैं वो उनको चुनते हैं, राइट। जो म्युनिसिपल काउंसिल या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो हेड होते हैं, पॉलिटिकल हेड, जिसको चुन के बनाया जाता है, ठीक है, उनको हम लोग मेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेयर, ठीक है। So nowadays in our country there are approximately 36 lakh elected representative in the local government, right? So जो 36 lakhs, it is sometimes it is the more than population of some countries, right? जो small countries हैं उसके ज्यादा population, उसकी जो population है उससे ज्यादा लोग यहाँ पर elect किए जाते हैं। So look at here the vastness of our country, right? So ये हो गया। Now come to the challenges of local government. हमने लोकल गवर्नमेंट बना दिए, बट देयर आर सर्टेन चैलेंजेस फेस्ड बाय दिस लोकल गवर्नमेंट। व्हाट आर द चैलेंजेस? सो यू ऑफन सी दैट द मीटिंग्स आर नॉट हेल्ड रेगुलरली। ग्राम सभा की जो मीटिंग होती है वो रेगुलरली नहीं होता है। कई जगह पर करप्शन होते हैं, लोगों को पैसे दे के इलेक्शन में जीत जाते हैं। लुक एट हियर, सम आर्टिकल्स आर गिवन हियर, राइट। फॉर 250 जस्टिस इन अ विलेज, दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक विलेज है जहां पर की जो पंच है, जो फैसले करते हैं, अगर किसी तरह का कुछ गलत हो गया किसी के साथ, तो गांव में ऐसा ट्रेडिशन है कि लोग क्या करते हैं, कुछ लोगों को बुला के और वो फैसला करवाते हैं।
तो यहाँ पर पंच क्या कर रहे हैं, 250 रुपए लेके ब्राइब लेके किसी के खिलाफ जस्टिस दे दिया, दैट मीन्स किसी को जस्टिस नहीं मिला इस वजह से, है ना। देन डेमोक्रेसी फॉर सेल इन तमिलनाडु, हाईएस्ट बीडर गेट पंचायत पोस्ट। सो डेमोक्रेसी में जहां पर इलेक्शन होता है वहां पर क्या हो रहा है कि लोग पैसे देकर वोट खरीद रहे हैं, है ना, और अपने आप को पंचायत मेंबर बना रहे हैं। सो दिस इज हाउ दीज आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय लोकल गवर्नमेंट। इसके बाद एक और चैलेंजेस है, वो क्या है, वुमेन को हमने रिजर्वेशन दिया है लेकिन फिर भी वुमेन्स आर नॉट द रियल डिसीजन मेकर, राइट, उसके हस्बैंड डिसीजंस लेते हैं, ठीक है। So these are the challenges I written over here. Some challenges you can also write on your own. So ग्राम सभा is not held regularly, ठीक है। कई सारे स्टेट गवर्नमेंट पावर शेयर नहीं करती है लोकल गवर्नमेंट के साथ, सिग्निफिकेंट पावर, बहुत कम पावर शेयर करती है। वुमेन रिप्रेजेंटेटिव जो है वो डिसीजन नहीं लेती है इंडिपेंडेंटली, राइट, उनके फैमिली मेंबर उनके साथ होते हैं डिसीजन लेने में। तो दीज आर द challenges in local government. This is an experiment in Brazil. ऑलरेडी वी डिस्कस इन क्लास, एक बार आप इसको पढ़ लेना, ब्राजील में किस तरह से लोकल गवर्नमेंट को फॉर्म किया गया था। एंड देन कम टू द क्वेश्चन एंड आंसर। तो ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन एंड आंसर। दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।